Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture, we are talking about that different assay, which is called that lactate dehydrogenase assay. Okay. So my name is Roshni Bhatt and you are watching the various types of cytotoxicity assay. In this previous video lecture, we are talking about that chromium release assay. Okay. And then after in this video lecture we are talking about that LDH release assay as well as this kind of assay like CRA, LDH, MTT, XTT or MTS assay. These are the assay which are same. Meanwhile, as their principle or their reagent or their chemical reactions are same, so that wise I think about that this MTT, XTT or MTS assay, this three essay going toward as a comparison type. ओके सो हम इसकी भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और एलडीएच रिलीज ऐसे हम पूरा देखेंगे. ओके so let us start. So today's our agenda is that first of all we are introduce the cytotoxicity assay. Okay, then after understand about that what is the LDH. Okay, principle, their workflow, control and calculation, as well as some are the common dyes which are using in the cytotoxicity assay, which is very useful for the detection methods. Then after going for that application and advantages and limitations, right? So first of all we are talking about that introduction to cytotoxicity assay. So we know about the cytotoxicity, which is refers to the ability of the substance or cell to cause the damage or death to living cells. Okay, or various laboratory tests which are used to measure for that cell viability, cell death or their damage, which is called the cytotoxicity assay, right? Commonly which is used for the drug screening, toxicology study and cancer research, as well as in this previous video lecture we are talking about that chromium release assay. So chromium release assay mainly function for that whenever we are want to check the immune cells efficiency after that drug exposure. Okay, we can check by the chromium release assay. So there are two major types of cytotoxicity. First one is that necrosis और second one is that apoptosis. Okay, so साइटोटॉक्सिसिटी दो टाइप की हो सकती है. एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है. ओके, यानी कि अगर एपोप्टोसिस होता है तो दैट इज वेरी गुड, और अगर नेक्रोसिस होता है यानी कि एक्सीडेंटल डेथ होती है कोई भी सेल की तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस. ओके, यानी कि हमने कोई ड्रग का एक्सपोजर नहीं दिया है, यहाँ पर एक्सीडेंटली कोई सेल डेथ हो रही है तो विच इज कॉल्ड द नेक्रोसिस. एपोप्टोसिस यानी कि सेल जो है उसका एक पीरियड यानी कि उसका लाइफ स्पान है वो कंप्लीट करके वो अगर डेथ हो करता है तो विच इज कॉल्ड दैट एपोप्टोसिस. या फिर आप कोई ड्रग दे रहे हो उसके बाद उसकी डेथ हो रही है तो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. बट एक्सीडेंटल यानी कि कोई भी रीजन के बगैर अगर डेथ हो रही है तो विच इज कॉल्ड द नेक्रोसिस. ओके, what is the meaning of the LDH? So LDH is the one type of the lactate dehydrogenase enzyme which is found in the intracellular of the living cells. Okay, and it plays a key role in anaerobic respiration and helping the cells to convert the lactate into the pyruvate. Okay, यानी कि ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही सेल जो है वो लाइस होगा तब एलडीएच बाहर आएगा. एलडीएच जो है वो क्या करता है, लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है. ओके, और उसी दौरान क्या होता है कि NAD+ क्या है, निकोटिनिमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है. ओके, सो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर. ओके, और ये NADH के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सेल डेथ काउंट कर सकते हैं. कैसे? सो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फंडा है कि हम क्या करेंगे, NADH को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बहुत ही इंटरनल फॉर्माजोन. ओके, INT फॉर्माजोन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो क्या करता है, फॉर्माजोन जो है वो कन्वर्ट करता है, यानी कि INT जो है वो INT फॉर्माजोन में बन जाता है.
ईडियो नाइट्रो आगे उसका नाम आएगा, कि उसका क्या नाम है, कि वो फॉर्माजोन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ डायफेरोस। ओके, सो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल की डेथ अगर हमें देखनी है, यानी कि कितने सेल डेथ हुए आफ्टर दैट ड्रग एक्सपोजर और वैक्सीन, या फिर कोई भी आपने कोई टॉक्सिक कंपाउंड लिया और उसके आप चेक कर रहे हो LD50। ओके, यहाँ से आप LD50 भी निकाल सकते हो कोई भी ड्रग की। सो ऐसे करके अगर आप देखना चाहते हो कि कितने डोज के अंदर सेल डेथ हो रही है, तो वो भी आप देख सकते हो। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फंडा क्या है कि LDH इज रिलीज फ्रॉम द सेल when the plasma membrane is damaged. Okay, and the LDH which is released the culture medium is used as a biomarker of the cell death or cell damage. So यहाँ पर कपल रिएक्शन क्या होती है, NADH और कपल रिएक्शन विद द टेट्राजोलियम डाई, ओके, INT इज अ कलर फॉर्माजोन प्रोडक्ट, कलर फॉर्माजोन प्रोडक्ट बनेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी OD लेंगे। ओके, सो दैट इज द वर्क फ्लो। सो पहले तो हम क्या करेंगे, टारगेट सेल को हम करेंगे 96 वेल के अंदर इंक्यूबेट, यानी कि सीड करेंगे। देन आफ्टर ट्रीटमेंट देंगे कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड की, या फिर हाँ जो भी हमारा टेस्ट कंपाउंड है उसकी। देन आफ्टर 24 आवर्स या 4 आवर्स, डिपेंड्स ऑन दैट अवर योर रिक्वायरमेंट और देयर प्रोटोकॉल के हिसाब से इंक्यूबेशन पीरियड जो है यहाँ पर वेरी करेगा। ओके, पहले क्या हुआ, सीडिंग, देन आफ्टर डोजिंग, देन आफ्टर इंक्यूबेशन। ओके, आफ्टर दैट इंक्यूबेशन कलेक्ट द सुपरनेटेंट। ओके, हम सुपरनेटेंट को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे फॉर दैट इन द न्यू प्लेट फॉर दैट एनालिसिस। क्यों क्यों हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें चेक करना है कि कितने सेल डेथ हुए तो हम कैसे करेंगे, बाय द एडिंग ऑफ दैट टेट्राजोलियम डाई। सो यहाँ पर हम LDH रिएक्शन मिक्स यूज करेंगे कि उसके बाद हम थोड़ी देर रहने देंगे, यानी कि 30 to 60 मिनट्स रूम टेम्परेचर इन द डार्क कंडीशन। ओके, डार्क कंडीशन याद रखनी है कि कोई भी आप साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ डाइज ऐसी है कि जो लाइट सेंसिटिव है, तो हमें वो जो एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करो, यानी कि जब आप डाई यानी कि मिक्सचर आप जब यूज करो तब डार्क कंडीशन होनी चाहिए। ओके, देन आफ्टर मेजर द एब्जॉर्बेंस एट 490 नैनोमीटर। These are the controls you can use in that experiment. First of all the spontaneous release control, यानी कि हम यहाँ पर टारगेट सेल्स को सीड करेंगे विदाउट ट्रीटमेंट। ओके, यानी कि कोई भी डोज की ट्रीटमेंट हम यहाँ पर नहीं देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि विदाउट डोजिंग कितने सेल्स ऐसे हैं कि जो LDH लीक कर रहे हैं, लाइव सेल्स। ओके, देन आफ्टर मैक्सिमम रिलीज कंट्रोल। सो टारगेट सेल्स ट्रीटेड विथ लाइसिस बफर, आप कोई भी लाइसिस बफर यूज करके एज अ पॉजिटिव कंट्रोल उसको ले सकते हो, क्योंकि क्या होगा कि ट्राइटन X100 जो है वो ज्यादा सेल को क्या करेगा, लाइस करेगा, तो उसको हम पॉजिटिव कंट्रोल लेंगे। देन आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वेल्स, यानी कि टारगेट सेल्स प्लस टेस्ट कंपाउंड। ओके, और ऑल्सो कॉल्ड एज अ इफेक्टर सेल्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टर सेल्स कहाँ आया था, क्रोमियम रिलीज ऐसे के अंदर आया था, याद करो। ओके, देन आफ्टर ब्लैंक भी आप ले सकते हो, मीडिया ओनली, यानी कि ओनली मीडिया विदाउट सेल्स। सो ऐसे करके आप कंट्रोल लोगे। ओके, और क्या करोगे, अपना सेटअप लगाओगे। These are the common tetrazoleum dyes which are used for the different types of cytotoxicity assay। तो आप यहाँ से आप उसका फोटोग्राफ ले सकते हो। और देखो, INT और MTT दोनों जो डाई है वो बहुत ही ज़्यादा इनसॉल्यूबल है, यानी कि जब फॉर्माजोन बनेगा तो वो इनसॉल्यूबल होगा, लेकिन जब आप DMSO में डिजोल्व करोगे तब जाकर आपको उसकी जो फॉर्माजोन जो है वो डिजोल्व होकर आपको क्या देंगे, OD देंगे, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा। जबकि XTT MTS और WST जो है वो सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, तो आपको उसके लिए कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज नहीं करना पड़ेगा। ओके,
सो एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल। अगर आप कोई भी ड्रग, न्यू ड्रग है, कोई केमिकल है, या फिर कोई भी नैनो पार्टिकल्स रिलेटेड वैक्सीन है, उसकी अगर आप चेक करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दैट दिस टाइप ऑफ ऐसे। Second thing is that immunological study, okay, like that natural killer cells और cytotoxic T cells की अगर आप efficiency check करना चाहते हो तो भी आप ये use कर सकते हो। Then after in cancer research, in toxicology testing, जीन एडिटिंग एंड ट्रांसफेक्शन स्टडी, ओके। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो आप रीड कर लेना, ओके। और आप अगर आपको एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं कि LDH ऐसे, तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा, ओके। डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स, ओके। किस मार्क्स के अंदर ये आपको क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन आफ्टर एडवांटेजेस, हमें पता है कि यहाँ पर हम कोई भी रेडियो एक्टिव रिएजेंट यूज नहीं कर रहा है। सो एज कंपेयर टू द क्रोमियम रिलीज ऐसे, दैट इज अ वेरी सेफर साइड, ओके। देन आफ्टर सिंपल एंड क्विक मेथड है, इजी प्रोटोकॉल है उसका। कुछ नहीं करना, सिर्फ सेल को सीड करना है, डोजिंग करना है, इंक्यूबेशन करना है। आफ्टर दैट इंक्यूबेशन आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका डाई जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो डाई यूज़ करके 30 to 60 मिनट्स में आप ओडी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल आपको कंट्रोल्स, और अगर आप की हैंडलिंग अच्छी है तो आपको जो रिजल्ट्स है वो भी अच्छे आएंगे, ओके। देन आफ्टर हाई थ्रूपुट कॉम्पेटेबल, आइडल फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द लार्ज सैंपल सेट्स, वेरी कोस्ट इफेक्टिव है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कोस्ट नहीं लगती है, ओके। एंड इट इज़ वेरी एप्लीकेबल फॉर दैट सस्पेंशन कल्चर और एरिडेंस कल्चर्स। लिमिटेशन उसकी इतनी है कि हम यहाँ से ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर मान लीजिए कि कोई सेल्स के अंदर कोई एक वेल था, कोई एक वेल है, 96 वेल में से कोई एक वेल ले लेते हैं, उस वेल में ओडी डोजिंग कम है, ओके। लेकिन हमें जो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ओके। यानी कि उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादा मिल रही है। सो हम यहाँ से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो डेथ हो रही है सेल की, वो एपोप्टोसिस के कारण हो रही है या फिर नेक्रोसिस के कारण, ओके। सो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा क्या हो जाता है, लिमिटेशन आ जाती है, ओके। कोई भी ऐसे ले लो आप, उसकी एडवांटेजेस भी होंगे और लिमिटेशंस भी होगी, ओके। बट वाइसा वर्सा, अगर आप अच्छी तरीके से कर रहे हो हैंडलिंग, तो आपके रिजल्ट जो है वो अच्छे ही आएंगे। हाँ, लेकिन आपको दूसरे ऐसे भी करने पड़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर देखने वाले हैं कि अगर आपको एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिफरेंशिएट करना है तो आप कौन सा साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे परफॉर्म करोगे, ओके। Then after background noise, some LDH release can occur naturally, spontaneously जो release होता है उसको हम background noise बोलते हैं, okay? हमने कोई डोजिंग नहीं दी है, फिर भी जो हमने कंट्रोल रखा है उसमें भी LDH रिलीज हो रहा है। सो हम उसको फिर ऐसे स्पेसिफिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये डोजिंग के कारण हो रहा है या फिर खुद ही सेल रिलीज आउट कर रहा है, ओके। End point ऐसे, not real time, requires stopping the reaction, LDH instability and false positive. Sometimes some test compounds may interfere with the enzymes or dyes and gives us false positive result, okay. So these are the limitations and advantages. Now moving towards our next session is what, compare the MTTSA, XTTSA और MTSSA। क्विकली इसको हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो सबके अंदर जो क्राइटेरिया है वो सेम है, ओके। लेकिन डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलता है। देखो डिफरेंट डाइज आर यूजेस, सो ये डाइज के नेम याद रखने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप उसको याद कर लो। MTTSA का डाई आप याद रख सकते हो कि 3,4,5 डाईमिथाइल थेजोल 2,5 डाईफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, ओके। देन आफ्टर अगर हम बात करें फॉर्माजोन सॉल्युबिलिटी की, सो MTTSA के अंदर हमने आगे भी देखा कि जो भी फॉर्माजोन प्रोड्यूस होता है वो इनसॉल्युबल होता है, यानी कि DMSO जब आप डालोगे तभी वो सॉल्युबल होगा, ओके। देन आफ्टर XTT में क्या है,
soluble in medium. Okay, no extra solubilization step is needed. और MTS ऐसे के अंदर भी सेम है. देन आफ्टर डिटेक्शन वेवलेंथ की अगर हम बात करें, सो डिटेक्शन वेवलेंथ अलग अलग है. ओके, दिस वन इज दैट 570 नैनोमीटर, 450 to 490 एंड 490 to 500 MTS ऐसे. MTTSA के अंदर सॉल्युबलाइजेशन स्टेप इन्वॉल्व है, इसीलिए आपको यहाँ पर इंक्यूबेशन करना पड़ेगा आफ्टर द एडिंग ऑफ द DMSO, क्योंकि DMSO जब आप ऐड करोगे तभी जाकर ये जो फॉर्माजोन है वो सॉल्युबलाइज होगे और तभी जाकर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ओके, देन आफ्टर जब हम बात करते हैं कि स्पीड easy to use, so this is a solver, involves more steps. ओके, MTTSA को अगर आप देखना चाहें तो ये थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू द XTT और MTS ऐसे. ओके, देन आफ्टर साइटोटॉक्सिसिटी चेक करें तो स्लाइटली टॉक्सिक टू सेल्स ड्यूरिंग द ऐसे, बट XTT और MTS दिस इज द लीस्ट टॉक्सिक. ओके, मैकेनिज्म क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीहाइड्रोजिनेज विच रिड्यूस द MTT टू फॉर्माजोन. XTT ऐसे के अंदर क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिडक्शन ऑफ द XTT टू फॉर्माजोन विथ PMS एड. एंड MTS ऐसे के अंदर क्या होता है कि सिमिलर टू XTT रिडक्शन ऑकर्स एक्स्ट्रा सेलुलरली. सो MTTSA को लेस सूटेबल मानते तो है, लेकिन सेल कल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा MTTSA यूज होता है. ओके, देन आफ्टर XTTSA सूटेबल फॉर HTS यानी कि होमोजीनस ऐसे, और ऑल्सो MTS दिस इज द सेम फॉर दैट XTT और MTSS. सो यहाँ पर हमने देखा कि XTT और MTS ऐसे जो है उनकी जो कंपैरिजन अगर की जाए तो वो थोड़े उनके जो पैरामीटर है वो सेम लगते हैं एज कम्पेयर टू द MTTSA. ओके, आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड. इन दिस वीडियो लेक्चर देर आर 4 ऐसे हमने यहाँ से कवर किए. फर्स्ट वन इज द LDH, देन सेकंड वन इज द MTT, XTT और MTS ऐसे. ओके, thank you so much for watching my video lectures in Roshni's Zoology channel. And if you are new viewers, please like this video and subscribe my channel. And if you are any doubts in this topic related or other topics related, give me your doubts in comment section. Thank you so much for watching.